So I told you in the last class that position is very fundamental in physics. And in case of one dimension mean the particle is confined to move along a straight line. That is the meaning of one dimensional motion. So in one dimensional motion, it is very easy to mark the position. So the line along which the motion is happening, उसको हम उसी को x एक्सिस मान लेंगे और किसी भी लाइन के along दो डायरेक्शन पॉसिबल है. This is our x axis and along any line two directions are possible, so I will call this direction as negative and this direction as positive. फिर उसके बाद किसी भी पॉइंट को हम ओरिजिन चूज कर सकते हैं. हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए पोजीशन को मार्क करने के लिए. आप हमेशा अगर नॉर्मल एग्जांपल भी देखोगे पोजीशन कैसे बताते हैं, इस लोकेशन से 5 मीटर की दूरी पर वो है, 10 मीटर की दूरी पर इस डायरेक्शन में ये चीज है ना. जैसे कि जब आप अपने घर रहते हो आप कैसे बोलते हो, रेलवे स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर है, मेरा स्कूल यहाँ से 6 किलोमीटर है, स्टेडियम पिछले वाली साइड है 1 किलोमीटर पे. सो वी हैव टू चूज एक रेफरेंस पॉइंट हमेशा चूज करना होगा in order to mark the position. And along this line we can mark positions like 1 2 3. कोई भी कन्वीनियंट यूनिट हम चूज कर सकते हैं. इट कैन बी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, miles, and position to the left side of the origin they will be marked as negative, -1, -2, -3, -4, -5. और मीनिंग यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर है. अगर हम कह रहे हैं कि पोजीशन 6 है, दैट मींस वी आर 6 मीटर टू द राइट ऑफ ओरिजिन. अगर हम कह रहे हैं कि पोजीशन -3 है, दैट मींस we are 3 meter to the left of origin. Okay, so in this manner we have marked the position along a straight line in one dimension. Ab next cheese, the position is marked. So here position is given by x coordinate. Then if we talk about displacement measures the change of position. It measures the change in position. And change is denoted by the symbol delta. It means final minus initial. It always means final minus initial. So displacement is change in position and the symbol for displacement is S. So here S would be given by change of position. S is equal to delta x, which is equal to x final minus x initial. Final position minus initial position gives us the direction of displacement. And it is a vector quantity. It is a vector quantity and its direction is from initial position to final position. Initial position to
final position. Okay, for example, last class में हमने देखा था that if you are moving from, suppose if initial position is 8 and the final position is, say, this is 4, पार्टिकल हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, कैसे भी मूव कर रहा है, इसी लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, वो कैसे भी मूव कर रहा है, लेकिन फाइनली कहां जाकर रुका, इक्वल टू 4। ठीक है, ये मोशन कैसे भी कर सकता है, 8 से स्टार्ट होकर इधर जाए उधर भागे, लेकिन फाइनली जाकर रुक रहा है x इक्वल टू 4 पर। जैसे हम यहां बात करते थे ना कि O से P पर जा रहा है, O से P तक जाना है, कैसे भी जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ वाला वेक्टर। तो वही कॉन्सेप्ट लगाया ना इधर भी, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर and magnitude would be given by delta x, so it will turn out to be s is equal to delta x, which is equal to x final minus x initial. It is turning out to be plus 4. डायरेक्शन हमारी कहां से है सर, x फाइनल तो हमारा 4 है ना, तो सर 4 माइनस 8 होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। सो माइनस 4। So this is 4 minus 8, it is minus 4. And it is a vector from initial position to final position. This is x initial, this is x final, from initial to final. This is a vector from initial position to final position. So this vector is representing displacement. This is displacement vector. This thing is the displacement vector. And it is turning out to be negative. Negative is telling you that the direction is to the left. Along this line, the direction is to the left. This direction is negative. So the interpretation of the minus sign is that minus is only telling you the direction along the line. हर एक लाइन के अलोंग आपको अपनी तरफ से चूज करना होगा कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी साइड को मान लो, ये पॉजिटिव तो फिर वो नेगेटिव। और हर एक लाइन के अलोंग दो डायरेक्शन हमेशा होंगे, है ना, हर एक लाइन के अलोंग दो डायरेक्शन होंगी ही होंगी। सो ये पूरी कहानी हो जाएगी हमारी वन डायमेंशन की। और इफ आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, suppose if x initial, this is minus 5, and x final, if this is minus 1. In this case, the displacement factor is delta x. So final position is minus 1, minus 1, minus 5. So it will turn out to be plus 4. Therefore, it is a vector from initial position to final position. Final position is minus 1. अपने आप ही पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मीन्स इट इज टू द राइट। ठीक है, हमने यहां पे देखा दैट द डायरेक्शन इज टू द राइट। सो ऑन एन एवरेज द पार्टिकल हैज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन इन द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस लाइन। ओके, सेम फिर वेलोसिटी के अंदर हो जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज, if we talk about velocity, velocity is defined as displacement upon time, and displacement is given by delta x, so it is delta x by delta t. And in fact, this concept is the average velocity. This is the concept of average velocity. Because here
we are talking about the full time interval. यहां हम बात करें कंप्लीट टाइम इंटरवल की. You know that delta x, that is x s, it can be positive, it can be negative. So this quantity can be positive or negative, can be positive or it can be negative, can be positive, it can be negative. So please try to see here. So this is the displacement, this was s. When the position is changing from -5 to 1, displacement is this. Displacement is positive. Suppose this change is happening in 2 seconds. 2 सेकंड में चेंज हुआ है और डिस्प्लेसमेंट हमारा 4 है, तो स्पीड वेलोसिटी कितनी आएगी? 2 मीटर पर सेकंड. So in the previous example, we know that delta x is -1 minus of -5. Delta x is +4. So s is equal to +4. And if you assume that, say, position changed in 2 seconds, then velocity is equal to +4 upon 2, so it is +2 meter per second. So velocity again is positive. It is simply telling us that this object has moved to the right. वेलोसिटी पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये था कि ऑब्जेक्ट राइट साइड में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये एवरेज वेलोसिटी बताई है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में. तो पोजीशन है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इस लाइन के लॉन्ग, पोजीशन है तो हमारे पास वेलोसिटी है इस लाइन के लॉन्ग, और वो बकायदा डायरेक्शन के साथ आ रही है. पार्टिकल राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है. एक बारी पोजीशन हमने मार्क कर दी तो सारी चीज हमको पता लग जा रही है. मोशन चाहे राइट में है या लेफ्ट में है, वो इंफॉर्मेशन यहां से आ जा रही है. सिर्फ हमने काम कितना किया है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप करके बस एक ओरिजिन चूज किया है, बाकी सारी चीजें फिर अपने आप फॉलो कर रही है. हाँ जी, वेलोसिटी पैरामीटर है. वेलोसिटी की बकायदा मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने दी है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, है ना. इसके बाद अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन भी एक पैरामीटर है. टाइम तो है ही पैरामीटर. टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना. चलो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर देते हैं. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अभी एक्सटेंड कर देते हैं. Let us discuss about the concept of position vector. Position vector. But बेटा वो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है. दिस इज दी पोजीशन वेक्टर. ये तो देखो हमने लाइन वाला केस ले लिया, तो यहां पर पोजीशन मार्क रखी है x इक्वल टू 1 मीन्स 1 मीटर टू द राइट, तो ये भी पोजीशन वेक्टर ही एक तरीके से है. ओके, बट इन जनरल वी कैन हैव suppose I am having my coordinate system with me x y z. डिस्प्लेसमेंट का जनरल कॉन्सेप्ट यहीं पे बता दे रहा हूं. 3D ही हमने यहां पर ले लिया. कोई भी पोजीशन अगर P है, सपोज दिस इज द पॉइंट P एंड द पॉइंट P, तो आई विल ज्वाइन ओरिजिन टू द पॉइंट P.
यार पोजीशन मेजर करनी है तो एक ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट तो मानना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग भी हमने माना, इधर भी हमें लेना पड़ेगा। बट हेयर इन स्पेस कोई भी एक पोजीशन मार्क करनी होगी, इतनी दूरी पर पॉइंट पी है ओरिजिन से। So this OP is a vector and so this is known as the position vector. Okay, अब इस पोजीशन वेक्टर में ऐसा स्पेशल चीज क्या है बेटा? ये पोजीशन वेक्टर डिपेंड कर रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ये अकेला एक ऐसा वेक्टर है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड करेगा। कैसे? क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा हमारी चॉइस का होता है। सपोज इफ आई एम हैविंग दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन the position vector to the same point will be given by, है क्या नहीं? ये वेक्टर और ये वेक्टर तो अलग अलग है। अगर मैं कोई डिफरेंट ओरिजिन मान लूंगा, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो ओ प्राइम पी वेक्टर एंड ओपी वेक्टर दीज आर डिफरेंट। बाकी वेक्टर्स के साथ ऐसा नहीं था। वेक्टर इज वेक्टर, उसको किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिख सकते थे। सो वन थिंग अबाउट पोजीशन वेक्टर इज दैट position vector is specific to a coordinate system. Position vector is specific to a coordinate system. The position vector is specific to a coordinate system. If the coordinate system changes, the position vector will also change. Okay, so it simply gives the position, it gives the position of the object. It gives the position of the object. This was the point P, this is point O. So the position vector is denoted by, I can write it as RP. RP is the position vector. This is equal to OP vector and it is known as position vector of point P. This vector is known as position vector of point P. This is our RP vector. And say the coordinate of this point is X, Y, Z. So RP can be written as, this can be written as X I cap plus Y j cap plus Z k cap. This is the position vector of the point P. This is the position vector of the point P. Let us now suppose let us now try to define the
displacement in this case. Displacement. Suppose the particle is moving from the point P. There is one particle and this particle started moving from the point P. It has moved in some typical manner and finally it has reached, say this is the point Q. Particle has traveled and it has reached point Q. कैसे भी इसने ट्रेवल किया है, फाइनल पोजीशन इज व्हाट, पॉइंट Q. ये क्या थी, इनिशियल पोजीशन, अब ये फाइनल पोजीशन. सेम ही ऐसे हमने एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग भी किया था, यहां पार्टिकल कैसे भी मूव कर रहा है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आ गया, तो फाइनल पोजीशन पे आ गया. अब फाइनल पोजीशन कैसे दी जाएगी, वो दी जाएगी उसके पोजीशन वेक्टर से. Position vector is a straight line joining from point O to the given point. Okay. So this position vector is, I can write it down as simply RQ. This is the position vector of the point Q. Now displacement, how the displacement is defined? Final minus initial. So still I will be using displacement vector for S. I will be using S for the displacement vector. S is the displacement vector and this is equal to final position vector minus initial position vector. Final position vector minus the initial position vector. So vector S, this is equal to final position vector is RQ minus initial position vector is RP. RQ minus RP. ठीक है. और आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is a straight line, is a straight line joining initial point to the final point or initial position to final position. And direction is from initial to final position. The direction is from initial to final position. So the displacement vector is a vector from P to Q. और वैसे मैंने आपको बताया था जब हम दो वेक्टर्स का डिफरेंस लेते हैं, शिवेश अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, डिफरेंस लेना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, उनको टेल टू टेल रख दो. सपोज करो दिस इज वेक्टर ए एंड सपोज करो दिस इज वेक्टर बी. तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी वुड बी, इससे स्टार्ट करेंगे, ए माइनस बी वेक्टर विल बी दिस. ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज ए माइनस बी. फाइनल वाले पे हेड खत्म होगा, याद है ना. और ये भी नहीं समझ में आ रहा तो यहां पे देखो ट्रायंगुलर लॉ से आर पी प्लस दिस वेक्टर, इस वेक्टर को मैं कुछ ले लेता हूं, इस वेक्टर को सपोज करो हमने ले लिया एस वेक्टर ही ले लेते हैं. तो फ्रॉम दिस ऑल्सो यू कैन सी दैट आर पी प्लस एस वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ से दिस इज इक्वल टू आर क्यू वेक्टर, है ना. इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ही डिस्प्लेसमेंट होना था. सो ट्रायंगुलर लॉ से आर पी प्लस एस शुड बी इक्वल टू आर क्यू. सो एस वेक्टर किसके बराबर आएगा, आर क्यू माइनस आर पी. फ्रॉम ट्रायंगुलर लॉ. दिस इज फ्रॉम द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा यही होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. वन डायमेंशन में भी डेफिनेशन यही थी.
वहां भी वो एक वेक्टर था इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला। ठीक है, इस केस में भी वही है। अब शिवेश, अब क्या करें? अब देखो, so I'm writing down, let me write down the coordinate of point P as say x1, y1, z1, and for point Q as x2, y2 and z2। ठीक है, so I can write it in the final form as the displacement vector is equal to rq minus rp। rq is x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap minus rp is x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap। Since this vector is rq vector and this vector is RP vector. rp vector, so finally the displacement vector is given by x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। और फाइनली आई कैन से दैट सर व्हाट इज x2 माइनस x1? ये तो फाइनल x कोऑर्डिनेट है ना, y2 फाइनल y कोऑर्डिनेट है, z2 फाइनल z कोऑर्डिनेट है, टू वाली पोजीशन फाइनल वाली है ना। सो फाइनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज सिंपली डेल्टा x I कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप। फाइनली यही आ गया ना। Displacement vector, this is equal to PQ vector। एक चीज और ऐड कर दो यहां पर, this vector is vector PQ, initial to final, इधर final minus initial। Okay, this is P to Q, final minus initial is PQ vector। So the PQ vector is this। अब बेटा इसको जरा कंपेयर करो उससे, वहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कितना था, डेल्टा एक्स, लेकिन अब 3 डायमेंशन में ये तीन चीजें हो गई, एक्स के अलोंग अलग देख रहे हैं, वाई के अलोंग अलग देख रहे हैं, जेड के अलोंग अलग देख रहे हैं, वो तीनों को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। एक्स के अलोंग अलग डिस्प्लेसमेंट, वाई के अलोंग अलग डिस्प्लेसमेंट, और तीनों को अलग से वेक्टोरियली ऐड कर दिया तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिल गया। उसी का स्पेशल केस है, या वो इसका स्पेशल केस हम कह सकते हैं। हाँ, वाई और जेड है ही नहीं, डेल्टा वाई जीरो, डेल्टा एक्स जीरो, सेम वही चीज आ गई। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अब एक और चीज समझाने वाली बताना चाह रहा हूं। देखो, पोजीशन वेक्टर तो फ्रेम पर डिपेंड कर रहा है, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है, ये आप सभी ने देख लिया। ठीक है, अब थोड़ी सी एक गहरी बात बताऊंगा, वैसे उसको बिना बताए भी काम चल जाएगा, बट स्टिल बता रहा हूं।
कोई भी रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं स्पेस में, सपोज दिस इज द पॉइंट P एंड से दिस इज द पॉइंट Q। अपनी मर्जी से पूरे स्पेस में कोई भी दो पॉइंट हमने अज्यूम कर दिए, है ना। और आपको ये भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होना चाहिए, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, ठीक है, वो ही आना चाहिए। यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। मानते हो ना इस बात को? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने के लिए। सपोज करो एक मैंने इसको चूज कर लिया, ठीक है, एंड सपोज this is another choice of coordinate system, one is this। दूसरा इसको चूज करते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से चूज कर दिया, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम। से दिस ओरिजिन इज O, दिस ओरिजिन इज O प्राइम। तो बेटा इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आप जानते हो, सीधा O से P को ज्वाइन करने वाली एक लाइन, एंड Q का पोजीशन वेक्टर O2 को ज्वाइन करने वाली एक लाइन। इसका पोजीशन वेक्टर लगाया, इसका पोजीशन वेक्टर लगाया, और सीधा फिर फाइनल माइनस इनिशियल, हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर आप कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चूज कर लेते ना, चाहे ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम चूज कर लेते, तो बेटा जी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P चेंज हो जाएगा, है क्या नहीं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो अगर ये दोनों ही ट्राइंगल आप देखोगे फ्रॉम ट्राइंगल O प्राइम P Q, so you know that O prime P, this is the displacement vector, O prime P plus S, this is equal to O prime Q। So from here S is equal to O prime Q minus O prime P, एंड सेम ही इससे भी आएगा, फ्रॉम ट्राइंगल O P Q, you know that OP vector plus S vector, this is equal to OQ vector। So S vector is equal to OQ vector minus OP vector। यानी कि आप कोई भी ओरिजिन चूज करें, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करें, फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा यही सेम वेक्टर निकल कर आ रहा है। तो पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। चाहे आप ये वाला सिस्टम चूज करें या ये, डिस्प्लेसमेंट यूनिक है हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से। Therefore we can say that position vector, the position vector is coordinate system dependent, coordinate system dependent parameter, coordinate system dependent parameter, while displacement vector, while displacement is independent, displacement vector is independent of the choice of
is independent of the choice of origin or the coordinate system or the reference frame. Understood, Karan? Karan, Yes, sir. बेटा बात क्लियर हुई ना? Yes, sir. देखो क्लियरली दिख रहा है ओ पी वेक्टर अलग है, ओ पी वेक्टर अलग है, पोजीशन वेक्टर अलग है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये वेक्टर दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम से सेम ही है। तो आगे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम अपनी मर्जी का कोई भी चूज करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कंपोनेंट हाँ अलग हो जाएंगे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम से, लेकिन वो वेक्टर स्पेस में जो है उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। पोजीशन वेक्टर में तो वेक्टर ही बदल जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये नहीं बदलेगा, बेशक इसके कंपोनेंट बदल जाए। और डिस्प्लेसमेंट से ही वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा, सारी चीजें। चलो, नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिस्टेंस। मेरे ख्याल से डिस्टेंस के बारे में तो ज्यादा मैं आपको क्या ही बताऊं। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, actual length of the path. It is the actual path length. It is the actual path length traveled between initial point and final point. Between initial point and final point. It is a scalar quantity. This is a scalar quantity. And we also know that distance will be greater than or equal to displacement. Yes, sir. हाँ, इस पर बड़ी जोर गई। ऐसा है 9th क्लास में एक चीज तो अच्छे से समझ आई, displacement is greater than or equal to displacement. Okay. Now there is one more thing. If particle travels in a straight line, if particle travels in a straight line, without changing direction, without changing direction, then distance will be equal to displacement. मॉडुलस लगा दिया मैंने, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है बिना डायरेक्शन को चेंज करे, तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। For example, suppose we are having this straight line. This is point A, this is point B. And the particle can move only along the straight line. But suppose we are having two other points also
we are having point C here, point D here. Okay, and suppose the particle is moving like this. The particle is moving from A to D, particle is moving from A to D, and then particle is moving from D to C, and then particle is moving from C to B. So if we will add up all these displacements, the final displacement would be AB. पार्टिकल गया ऐसे, फिर डी से फिर इधर आया, फिर सी से वहां गया, और we can write it like here distance is equal to AD then from D to C, then from C to B. This is the total distance, but displacement is simply equal to AB. So along a straight line, if the direction is changing, then also distance would be greater than displacement. Then also distance would be greater than the displacement. Okay, guys. Now please listen to me. We are having a circle. So a particle is moving along this circle. A particle is moving along this circle. This is point A. This is point B. This is point C. And this is point D. And the particle is moving in this direction. Particle is moving in this direction. The radius of the path is circular path is R. Find distance and displacement. Find distance and displacement when particle moves from A to B, from A to C, and from A to D. Is question clear to everyone? करण, सवाल समझ में आ गया? Yes, sir. बहुत अच्छा.
प्लीज डू इट। अच्छा पहले देखो, पहले वाला पार्ट बताओ। ठीक है, बेटा रूट टू आर स्क्वायर कैसे हो सकता है? आर स्क्वायर कर दे तो डायमेंशन ही नहीं रही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की। मीटर स्क्वायर में थोड़ा आएगा, आर स्क्वायर तो डायमेंशन एरिया की नहीं हो जाएगी? वो डायमेंशनली सही नहीं है। ये आएगा। देखो सबसे पहली चीज, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन है ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी, है ना? एंड इट इज इक्वल टू, ओके वेल डन भाई। करंट डिस्प्लेसमेंट ये तो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए टू बी, और आर्क लेंथ ए बी, ये हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें पता है कि सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा पाई आर। तो आर्क लेंथ ए बी कितनी है? पाई आर बाई 2। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? दिस लेंथ इज आर, दिस लेंथ इज आर, दिस एंगल इज 90, so this length would be root 2 r. Okay, this length would be root 2 times r. Got it? In the second case, बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड केस स्ट्रेट लाइन क्या होगी? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी displacement is equal to 2r and distance is equal to, this is equal to arc length AC, which is equal to pi r. What about the third case? Third case from A to D. So from, बिल्कुल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आप क्या शो करोगे? सीधा स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए टू डी। मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल दिया। सो फ्रॉम ए टू डी डिस्टेंस इज बिल्कुल 3/2 पाई आर एंड displacement is equal to, the magnitude of displacement is root 2r. क्लियर है ना करंट? यस सर। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट अब आते हैं हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट। The concept of average velocity and average speed. Velocity and speed
And here we are talking about average velocity. Here we are talking about average velocity and average speed. Average velocity and average speed. So guys, average speed is defined as average speed, sorry, average velocity is defined as the ratio of is defined as the ratio of net displacement, the ratio of net displacement in a finite time interval, in a finite time interval to the given time interval, to the given time interval. This ratio is known as the average velocity. Suppose the particle was initially at point P. It moved somehow and then it reached point Q. The position vector of these points are, this is the position vector of P and this is the position vector of Q. Okay, let me write it down as this is simply RP and this thing is RQ. I know the position vector. So it is the ratio of net displacement. Net displacement is simply the vector from initial position to final position. Net displacement vector is a vector from initial position to final position. This is the net displacement vector. So average speed is simply net displacement upon the time interval. Suppose at time t1 the particle was here and at time t2 the particle was at q. So this delta t is net displacement vector upon t2 minus t1. And we know that net displacement vector is equal to final position minus initial position. Final position is given by rq vector minus rp vector divided by delta t. So this is the average velocity. This is the average velocity. अब जरा खुद ही देखो यार, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन है ना नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है. ऐसे इज द नेट डिस्प्लेसमेंट हियर. इस फाइनाइट टाइम इंटरवल में वो भले ही कैसे भी मूव किया, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा यही होगा ना, एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. तो इसकी डायरेक्शन है हमारे पास, यानी कि एवरेज वेलोसिटी की वही डायरेक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है. एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी इस डायरेक्शन में. Average velocity is a vector quantity. Average velocity is a vector quantity
and its direction is along the displacement, and its direction is along the displacement. What is the direction of average velocity? In the direction of net displacement. Along the net displacement. ठीक है, चलो अब अगर इसका आप वन डायमेंशनल वर्जन देखोगे, बेटा वन डायमेंशनल वर्जन में जब पार्टिकल एक ही लाइन के अलोंग है इन 1D, V average, it would be given by displacement upon delta t. Displacement is given by delta x. यहां पर बस ये हो गया, पोजीशन वेक्टर आ गया. It is delta x by delta t. Delta x can be positive and negative, so average velocity can be positive and negative. The same constant, same concept has been extended in 3 dimension. ठीक है, करण बात समझ में आई? एक फाइनाइट टाइम इंटरवल में हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि यहां से स्टार्ट किया कि ऊपर पहुंच गया, कुछ समय लगा पहुंचने में, कोई भी पाथ ले लिया. पाथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक वेक्टर होगा इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करने वाला. यस सर. ठीक है, चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एवरेज स्पीड. Average speed. It is the ratio of total distance covered in a finite time interval, to the given time interval. This is the concept of average speed. So average speed is equal to path TRQ upon delta t. Suppose here time was t1, here time is t2. सर वी एवरेज क्यों लिखा आपने? क्या? सर वी एवरेज इज इक्वल्स टू पाथ लेंथ PRQ. ये डायग्राम में दिखाया ना, P इस सबके अलोंग जो आ रहे हैं. ठीक है, नहीं आई बात समझ? यस सर. Is a scalar quantity. This thing is a scalar quantity. हम जानते हैं that distance is always greater than or equal to displacement. तो average velocity वहीं से आ जाएगा that
average speed is always greater than or equal to average velocity. Average velocity can be positive and negative, so I have to put modulus sign. Average speed will always be okay. बेटा वेलोसिटी में देखो, स्पीड से बात को समझो, वेलोसिटी को ये आप मैथमेटिकल नेगेटिव अगर उसको समझ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं वही तो बात कर रहा हूं इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन में आप ये कहोगे कि -30 इज ग्रेटर देन -50। सपोज करो हम वेलोसिटी की ही बात कर रहे हैं। अब अपने 1D वाले केस पर आ जाते हैं। अगर एक स्ट्रेट रोड पर ट्रक ही चल रहा है, एक हम कह रहे हैं ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है, ये तो इंटरप्रिटेशन है ना हमारा, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव ले ली और ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली। एक ट्रक चल रहा है -30 से, यानी कि ट्रक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारा, ठीक है, कितनी स्पीड से, 30 -30 मीटर पर से किलोमीटर पर आवर। और एक दूसरा ट्रक है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितना, 50 का इंटरप्रिटेशन तो ये है ना, कौन तेज है, ये तेज है ज्यादा, तो यही वाला है ना, माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। तो ये डिसेप्शन हमें हो सकता है। नंबर वाइज तो मैथमेटिक्स क्या कहती है, -30 इज ग्रेटर, बट स्पीड वाइज कौन ज्यादा तेज चल रहा है, तेज तो यही चल रहा है ना, माइनस बता रहा है बस नेगेटिव साइड में। हाँ, स्पीड में हमें मैग्नीट्यूड से मतलब कितनी तेज चल रहा है, किस डायरेक्शन में भाग रहा है हमें कोई मतलब नहीं। सेन बोल्ट बहुत तेज भागता है हम जानते हैं ना, किसी डायरेक्शन में भागे हमें कोई मतलब नहीं। जब हमें डायरेक्शन से मतलब है, यानी कि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं और वो प्लस माइनस उस समय पर आ रहा है, और वहां का जो प्लस माइनस आ रहा है वो सिर्फ बेटा डायरेक्शन के लिए है ना। उसका मतलब ये नहीं है कि -50 वाला धीमे है -30 से, नो, वो माइनस तो डायरेक्शन के लिए है। वो बस इतना बता रहा है कि इस रोड के अलोंग लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, ये फिजिकल रियलिटी है उसकी। चलो, प्लीज नोट डाउन वन प्रॉब्लम। Suppose we are having a particle which is moving from A to B. A particle is moving from point A to point B. A particle moves from A to B. A particle moves from A to B along two paths. Let us say that this is path 1 and this is path 2. Along two paths 1 and 2 as shown, find
average speed and average velocity. Find average speed क्या हाँ रेडियस आर ले लो. Find average speed or find the ratio of average speed and average velocity in both cases. Take the radius to be r. Radius is r. Please do it. पाथ 1 के लॉन्ग बताओ पहले. बिल्कुल. पाथ 2 5:2. ठीक है. Along path 1, distance is 2r. Distance is 2r and displacement is also 2r. So the velocity, okay, velocity upon speed, this is simply 1/1. And then the average speed in second case, average speed upon average velocity. Time taken we are assuming for both of them is same. So along the path 2, this is pi r by t and average velocity would be 2r by t. So this thing is equal to pi r by 2r pi by 2. ठीक है करण? Yes, sir. Okay. Please note down one more problem. A particle is moving with a particle is moving with particle is moving with constant speed v on a circular path, constant speed v on a circular path of radius r. Then find the ratio of average speed
to average velocity between points first one is A and B, A and C, and the third one A and T. Please do it. Radius of the circular path is R. Please do this. और do one thing, इसको भी छोड़ो. रेशियो को भी छोड़ो, आप ये निकाल दो, एवरेज वेलोसिटी निकालो. एवरेज वेलोसिटी निकालो पहले. टाइम तो बेटा निकाल ही लोगे. सर्कुलर पाथ में अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, आपको स्पीड भी पता है, स्पीड v है, लेंथ कितनी ट्रेवल कर रहा है वो भी पता है, टाइम नहीं आ जाएगा. लेंथ अपॉन स्पीड, दैट विल गिव यू टाइम. ठीक है, इसको सोल्व करके है ना. This is all for now, Karan. I'm ending this session right now.